चलिए, so very good morning once again. We are doing income method to measure national income, and according to income method, let us recall income method के according, if we add all the factor incomes, then the term which we get, that is known as national income. Accordingly, we have to add and subtract different other aggregates. वो सब बाद में करना पड़ेगा. But in a nutshell, we can say if we add factor incomes या factor payments in the form of rent, wage, interest, profit, so then we get the national income. Then we have studied already that there are three broad components of domestic income या factor income. जहाँ पर आपने factor income लिखा है ना, उसके ऊपर आप ये भी साथ में you can write domestic factor income. ठीक है, चाहे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम वर्ड हो या फैक्टर इनकम, वन एंड द सेम थिंग. तो देयर आर थ्री ब्रॉड कंपोनेंट्स. वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड वाज दिस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये दो हम लोग कवर कर चुके हैं, एंड थर्ड वाज प्रॉफिट. ठीक है, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के फर्दर थ्री पार्ट्स आर देयर. All these parts you have to learn, you have to remember their names, you have to learn these names, क्योंकि questions में numericals में sometimes the main value is given and sometimes the parts are given. तो फिर in that case we have to keep in mind कि कहाँ पर parts है तो उनको add करना पड़ेगा ब्रैकेट में. अगर main term है फिर it is okay, फिर कुछ नहीं करना है. तो मतलब all these things should be very much clear to us. ठीक है, तो compensation of employees के parts वर let us recall कौन कौन थे. Wages and salaries in cash and kind. Second was employers contribution, employers, ठीक है, employers contribution to social security schemes. And third was retirement pension, old age pension नहीं, retirement pension. ठीक है, in if we add these three then we get the term compensation of employees. उसके बाद था हमारा operating surplus. Operating surplus means income which goes to the production unit या firm in the form of income from property and income from entrepreneurship. ठीक है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है, तो इसमें से कल हमने डिस्कस किया था रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट तक हमारा डिस्कस हो गया था. जो ये वाला पार्ट है, आई हैव टेकन द पिक ऑफ द बुक इटसेल्फ, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, ये वाला पार्ट अभी हमारा रहता था फॉर डिस्कशन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, एज यू कैन अंडरलाइन इन द बुक ऑल्सो, रिवार्ड to the entrepreneur for his contribution to the production of goods services. It is the residual income. मतलब ये है कि जो entrepreneur है, entrepreneur means the organizer, the person who takes the risk to start and run a business. And then at that time when he takes this risk, he does not know whether he is going to have profit from his work or going to have loss from his work. जब अभी प्लान ही कर रहे हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी डोंट नो कि क्या होगा आगे. तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज टेकिंग रिस्क. जब हम व्हेन फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड वी स्टार्ट द वर्क, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव दैट स्टेक, वी आर गोइंग टू हैव दैट रिस्क. प्रॉफिट होता है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड फाइन. बट इफ लॉस होता है तो देन इवन ये जो एंटरप्रेन्योर है, ही हैज़ टू सफ़र फ्रॉम दैट लॉस. Nobody else will come to share his grief कि तुम्हें नुकसान हो गया, कोई और नहीं आएगा, उसी को लॉस होगा, उसी को बियर करना पड़ेगा. इन द सेम टाइम, इन द सेम मैनर, इफ प्रॉफिट्स आर देयर तो भी उसी को मिलेंगे. ठीक है, तो लॉस को नहीं लिखा जाता है कि लॉस को इनकम तो नहीं कहेंगे ना, वो तो घाटा ही पड़ रहा है. तो यहाँ पर इस करके लिखा जाता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट. ठीक, तो प्रॉफिट इज ए काइंड ऑफ रेजिडुअल इनकम. रेजिडुअल इनकम इन द सेंस कि सिंस एंटरप्रेन्योर इज मैनेजिंग ऑल अदर फैक्टर्स, तो whenever he gets income in the form of factor payments, जो भी उसको इनकम होती है, total income we can say, तो firstly he has to make payment of wages to the laborers, then he has to make payment in the form of rent, royalty, interest, जहाँ जहाँ से भी उसने अगर रेंट पे बिल्डिंग ली है या किसी से उधार लिया है, जो भी पेमेंट्स हैं उसको करनी पड़ती हैं. तो तीन पेमेंट्स उसको करनी पड़ती हैं, रेंट, रॉयल्टी उसके साथ ही मिक्स ही बोल देते हैं, ना भी बोलो तो भी कोई बात नहीं. वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज जो लेबर को जाता है, फिर रेंट जो लैंड को जाता है, रॉयल्टी भी लैंड को ही जाता है, और इंटरेस्ट अगर उसने उधार लिया है फ्रॉम द मार्केट, बोरो किया है. ठीक, तो अब बच गया, आफ्टर मेकिंग ऑल दीज पेमेंट्स, थ्री पेमेंट, देन व्हाट इज लेफ्ट विद हिम, दैट इज प्रॉफिट. तो वो उसको मिलना चाहिए. क्यों? बिकॉज ही हैज अंडरगॉन a lot of pain, a lot of stress. He has taken the he is bearing that headache to organize all the things. तो फिर उसको भी कुछ मिलना चाहिए. ठीक है, तो whatever is residual,
रेजिड्यूअल मतलब जो शेष बच जाता है, देन दैट मनी इज नोन एज प्रॉफिट एंड इट गोज टू द एंटरप्रेन्योर। इस करके ये लिखा जाता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है फर्दर, इसके पीछे वाला पेज मैंने क्लिक नहीं किया, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक। प्रॉफिट के फिर 3 पार्ट होते हैं, इसके पहले वाला पेज निकालो बेटे, 4.9 पेज। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, यहाँ लिखा ना यूज्ड फॉर 3 पर्पजेज, तो उसी का ही मीनिंग है कि 3 कंपोनेंट्स, यू कैन राइट हियर 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। पर्पजेज के साथ में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 3 कंपोनेंट्स ऑफ या 3 पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। तो दे आर नंबर 1 डिविडेंड्स, नंबर 2 कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर 3 कॉर्पोरेट सेविंग्स। जहाँ बुक में द वर्ड इज यूज्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके साथ में यू प्लीज राइट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसको आप लिखो कॉर्पोरेट सेविंग्स, उसी को ही बोल देते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स, और उसी का ही अदर नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्लीज राइट ऑल दीज 3 नेम्स। आई रिपीट, retained earnings और corporate savings और undistributed profit। कल बोर्ड पे भी ये लिखा था, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। वीडियो अगर ऑन कर ले बेटे तो मुझे दिख भी जाएगा who is writing and who is not writing। yes, that's better। ठीक है, तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में एनी ऑफ दीज 3 वर्ड्स कैन बी यूज्ड। तो अब आप याद कर लो, रिटेन्ड अर्निंग्स और द सेम इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग्स और द सेम इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्या मतलब होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है। सबसे पहले करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। तो कॉर्पोरेट सेविंग होता है, जैसे हम लोगों की इनकम होती है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, कैन एनीवन टेल? जैसे हम आम इंडिविजुअल्स हैं, इनकम टैक्स। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो इनकम टैक्स लगते हैं। तो एज इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, तो इन द सेम मैनर सम वन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट या इनकम ऑफ द फर्म्स ऑल्सो, ठीक है। फर्म की, कंपनी की जो इनकम होती है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। दैट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट टैक्स, भी उसी कंपनी को ही देना पड़ता है। दैट टैक्स इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट शब्द से ही क्लियर है, कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए यूज किया जाता है। सो कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स दैट टैक्स विच इज imposed by the government, या दूसरे वर्ड्स में विच इज पेड बाय द फर्म टू द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, वो फर्म की इनकम ही है। तो फर्म की इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट हुआ था उसका कुछ पार्ट इज गोइंग टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो पैसे चले गए, निकल गए उसके हाथ से। सेकंड आपने लिखा है डिविडेंड्स। अच्छा, अब आपको भी बिजनेस स्टडीज में भी यू हैव स्टडीड कि जो कोई कंपनीज होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने पैसों से ही करें। जो ओनर होता है, मालिक होता है या बोर्ड होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू इन्वेस्ट होल ऑफ देयर ओन मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज़ डन बाय द कंपनीज, शेयर्स आर ऑफर्ड इन द मार्केट, है ना। शेयर्स अनाउंस करते हैं ना कि ये 10 रुपीज़ का शेयर है या 100 का शेयर है या 1 रुपी का शेयर है, मतलब अलग अलग डिनोमिनेशन के शेयर्स मार्केट में चलाए जाते हैं। तो जो लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं, किसी ने 100 शेयर्स खरीद लिए, किसी ने किसी कंपनी के मान लो 20% शेयर खरीद लिए, जैसे सान्या और वंशिका कपूर कोई कंपनी है, तो दोनों ने मिलके मान लीजिए 60% के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। 60%, इसका मतलब कि अगर उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है तो उसमें से 60 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज बीइंग डन बाय दीज 2 गर्ल्स, सान्या एंड वंशिका, ठीक। अच्छा, अब हो गया कंपनी को प्रॉफिट, बहुत ही खुशी की बात है, प्रॉफिट हुआ। तो अब ये वंशिका और सान्या भी खुश होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी बताओ भाई देवियो, आप भी खुश होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि प्रॉफिट में से आपको भी हिस्सा मिलेगा, यू विल ऑल्सो गेट सम पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट। कितना पार्ट मिलेगा? जितने पार्ट के बराबर आपने शेयर खरीदे थे। एम आई राइट? यही मतलब होता है ना। तो आप दोनों ने 60% खरीदे थे, तो आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 60% प्रॉफिट विल कम टू यू, क्योंकि वो आपके पास आ रहा है। दैट इज वाई इट विल बी नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच गोज टू द शेयर होल्डर्स। तभी तो लोग शेयर्स में पैसे लगाते हैं कि प्रॉफिट हमें भी होगा। अगर ना हो तो फिर कोई भी ना पैसे लगाए, उसमें इन्वेस्ट ही ना करे। तो इसका मतलब डिविडेंड मीन्स दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच गोज टू द शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर
परसेंटेज ऑफ शेयर्स जितना भी है, किसी ने कम शेयर खरीदे हैं, कम परसेंट खरीदा तो कम प्रॉफिट आएगा, ज़्यादा खरीदे हैं तो ज़्यादा आएगा। बट यहाँ पर साथ में एक और चीज़ वी हैव टू रिमेंबर, अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर्स का भी उतना ही लॉस है ना, नुकसान के भी बराबर के हिस्सेदार है और प्रॉफिट के भी बराबर के हिस्सेदार है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तो चला जाएगा इनके पास, शेयर होल्डर्स के पास, दैट विल बी नोन एज डिविडेंड। अगर लॉस होता है तो फिर उसका कोई नाम नहीं होता है, उसका मतलब अगले के शेयर्स की उतनी वैल्यू कम हो गई, वो उस सेंस में है, तो उसको यहाँ मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक, तो वो इसका मतलब प्रॉफिट का सेकेंड पार्ट हैज़ ऑल्सो गॉन। कुछ पार्ट चला गया इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स विद टू द गवर्नमेंट, कुछ पार्ट चला गया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। अब बाकी क्या बच गया, जो बाकी बचा वो कंपनी ने, फर्म ने अपने पास ही रख लिया। ठीक है, दैट मनी हैज बीन, दैट प्रॉफिट हैज बीन रिटेन्ड। रिटेन्ड होता है टू कीप विद वन ओन सेल्फ, अपने पास रख लेना। तो दैट मनी हैज बीन रिटेन्ड बाय द फर्म, केप्ट बाय द फर्म विद इटसेल्फ, दैट इज व्हाई द वर्ड इज यूज्ड हियर रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब बाकी बची हुई अर्निंग्स। ठीक है, तो उसी को ही कह देते हैं, वो कंपनी की सेविंग्स होती हैं। तो उस सेंस में कहें तो हम कह देते हैं, उसी को कह देते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग, कि भाई वो फर्म ने, फर्म हैज सेव्ड दैट मनी, केप्ट दैट मनी विद इटसेल्फ, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ना तो गवर्नमेंट को दिया, ना ही दैट मनी हैज बीन गिवन टू शेयर होल्डर्स, दैट वाज द रेजिडुअल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बचा हुआ पार्ट है। तो नाउ व्हाट इज टू बी डन विद दैट रिटेन्ड अर्निंग, तो नाउ कंपनी हैज टू ऑप्शन, either it can keep that retained earning in the form of retained earning itself, वैसे ही अपने पास रख लिया in the form of saving, बचा के रखे हुए हैं तो भी ठीक है, और कंपनी may have plans to expand further in the near future। हर एक कंपनी चाहती है अपनी एक्सपेंशन करे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो समटाइम्स जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, they are kept with these two purposes। sometimes it is kept as just saving, भी ठीक है अपने पास पैसे पड़े हुए हैं, कंपनी की सेविंग हो रही है, और sometimes later on when sufficient money gets collected, सेव हो जाता है, तो then the same money is used for further expansion also। ठीक है, आगे काम को बढ़ाने के लिए। या समटाइम्स किसी समय क्या होता है, सम अनफोर्सीन इमरजेंसी हो जाती है, कोई एकदम से कोई अननोन कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, वी ऑल पीपल वी आर नॉट फोरकास्टर्स, हमें आगे क्या होगा फ्यूचर में किसी को नहीं पता। तो किसी समय कोई अचानक ही नुकसान हो जाता है जिसके बारे में नोबडी हैज़ इमेजिन्ड, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो सकती है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, तो कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू टैकल दैट इमरजेंसी, समटाइम्स दिस रिटेन्ड अर्निंग दैट मनी इज यूज्ड। सो दो तीन कामों के लिए बचे हुए, जैसे हम घरों पे करते हैं, वी पीपल सेविंग कर लेते हैं आने वाले टाइम के लिए, कोई आगे कुछ घर पे काम करना है उसके लिए सेव कर लेते हैं, कोई चीज़ लेनी है फॉर दैट वी सेव। तो इन द सेम मैनर फर्म्स ऑल्सो सेव फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन और फॉर जस्ट फॉर देयर ओन सेविंग और टू मीट एनी अनफोर्सीन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब इमरजेंसी कुछ भी, तो वो मनी फर्म के अपने पास ही रहता है। सिंस इट रिमेन्स विद द फर्म इटसेल्फ, इस करके इट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग या कॉर्पोरेट सेविंग, या उसी को कह देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, भी ये किसी को नहीं दिया था, इट वाज नॉट गिवन टू एनीवन। ठीक, तो देन वी हैव टू ऐड ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स टू कम टू द मेन टर्म प्रॉफिट। तीनों को ऐड करेंगे, कौन कौन से याद कर लो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्लस करना पड़ेगा हमें, क्या बच गया, डिविडेंड्स। इफ वी ऐड दीज थ्री इन ब्रैकेट देन वी गेट द मेन टर्म विच इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। नाउ कमिंग टू दिस पेज, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के ऑल पार्ट्स वी हैव कवर्ड। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपोनेंट, यहाँ पर ये नंबर 5 पे लिखा हुआ ना, आपने नंबर 5 नहीं करना है, आपने जैसे मैंने बोर्ड पे फॉर्मूला करवाया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके पार्ट्स हो गए, इन्होंने सारे एक ही सीक्वेंस में दे दिए, आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है, देन ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट हो गए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देन नाउ थर्ड कंपोनेंट इज, ये हमारा इक्वेशन के मुताबिक दिस इज अवर थर्ड कंपोनेंट, मिक्स्ड इनकम। तो दिस वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो। नाउ मिक्स्ड इनकम क्या होती है, इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स। own account workers means those people, those workers who do their own work without taking help of anyone else. They don't take help of any outsider person, rather they have started their own production but they are doing all the things themselves। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, बार्बर्स हैं, फार्मर्स हैं, कोई आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, शॉपकीपर्स हैं, किसी ने कोई अपना घर पे छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट किया हुआ है, कोई कुछ भी एनीथिंग, जैसे आप मान लो
अकाउंट्स के कोई कंसल्टेंट बन जाते हो, किसी को आप अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में, कंसल्टेंसी फर्म होती है ना, तो आप कंसल्टेंट बन जाते हो। तो आप क्या करते हो, आपके घर पे ही आपने अपना ऑफिस बना लिया, अपनी ही लैंड यूज़ कर ली, रेंट आपको ही जाएगा, आप ही सुबह सुबह उठ के किसी के आने से पहले ही आप ही वहाँ पे सफाई भी कर लेते हो, क्लीनिंग का काम भी, इसका मतलब आपने वो लेबर का काम भी खुद ही कर लिया, डस्टिंग भी आप ही कर ली, टेबल अपना सेट कर लिया। फिर उसके बाद 9 o'clock आप कपड़े चेंज करके आप बैठ गए टेबल पे, लोग आए आपके पास, उन्होंने आपसे कोई कंसल्टेशन की, आपने उससे फीस भी ले ली, शाम को अपना ऑफिस खुद ही बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, अपना हिसाब किताब खुद कर लिया। मतलब यू हैव नॉट एम्प्लॉयड एनीवन एल्स, यू हैव नॉट गॉट इवन ए सिंगल परसेंट्स हेल्प ऑफ एनीवन एल्स, किसी की मदद नहीं ली। तो मीनिंग क्या हुआ, फिर जो जो सारी इनकम है, शाम को आपको जो मनी मिला, उसमें आपको एक तरह से आपकी रेंट भी इंक्लूड है, क्योंकि आपने अपनी ज़मीन के ऊपर ही अपने घर पे ही वो ऑफिस बनाया, रेंट भी इंक्लूडेड है उसमें, आपने अपना मनी इन्वेस्ट करके वो सारा ऑफिस का सारा अरेंजमेंट किया था, अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपका इंटरेस्ट भी उसी में इंक्लूड है, आपका जो कंसल्टेंट के तौर पे आपकी वेज है वो भी उसी में आ जाती है, आपने एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपने सारी जिम्मेदारी उठाई, वो भी सारा कुछ है। मीन्स इस टाइप के काम जिसमें सिंगल पर्सन हैंडल्स ऑल द थिंग्स, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट कि किस किस काम के लिए आपको कितना पार्ट मिला था, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम लोग। तो इन दैट टाइप ऑफ केसेस, तो जो इनकम जनरेट होती है फैक्टर इनकम, सिंस वी कैन नॉट सेपरेट द अंडर डिफरेंट हेड्स कि रेंट कितना है या इंटरेस्ट कितना है, वी कैन नॉट सेपरेट, तो दैट इज वाई द टर्म इज यूज्ड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम अराइजेज फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हुज इनकम इंक्लूड्स, आगे जो भी मैंने बोला सारा। तो आमतौर पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी इनकम में सभी तरह की फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड। तो क्योंकि सेपरेशन इज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट देम सेपरेटली, दैट इज वाई एक न्यू नाम उसको दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ये वाला जो पार्ट है बेटे, इसको जस्ट रीड करना है, देयर इज नथिंग न्यू, जो भी मैंने समझाया वही है सारा इसमें। तो ये इस करके मिक्स्ड इनकम है। अभी कई बार मिक्स्ड इनकम की कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है, जो हमारे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम, डाटा अवेलेबल नहीं होता है, कोई अलग से कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो इस करके एक राउंड सा ही जिसको बोल सकते हैं एक कॉमन हेड के अंदर सब चीज़ों को ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। सो दिस पार्ट इज नथिंग स्पेशल, ऑलरेडी टोल्ड, तो यू कैन राइट हियर ओनली रीड। ठीक है, ओनली रीडिंग, वन रीडिंग इज इनफ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। yes, now you can see here one chart has been made here। तो अभी आप देखो क्या किया हमने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, उसके बाद ये जो तीनों हैं सेपरेटली भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब दीज आर ऑपरेटिंग सरप्लस, इन्होंने ये ऐसे नीचे करके लिख दिया ना, तो कोई ज़रूरी नहीं ऐसे लिखना, जैसे मर्जी आप लिख लो, जैसे मैंने बोर्ड पे आई टोल्ड यू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, ये तीनों उसके पार्ट्स हैं, एंड देन मिक्स्ड इनकम। So when we add all these, so then we get the term domestic income or domestic factor income, or the same is called net domestic product at factor cost। याद कर लेना है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस डोमेस्टिक इनकम, दैट मींस सम ऑफ दीज थ्री आइटम्स, ये एंड दिस वन, राइट। चलो अब आगे बहुत इजी, आपको बहुत मजा आएगा, ऑलरेडी हमने ये सारा कुछ किया हुआ है एग्रीगेट्स वाले कॉन्सेप्ट में, नथिंग न्यू। अब आ जाए स्टेप्स क्या है, कि अगर हमने इनकम मेथड से वी हैव टू कैलकुलेट या एस्टिमेट नेशनल इनकम, तो देन व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टेप मीन्स फ्रॉम वेयर वी हैव टू बिगिन अवर वर्क। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। इसका मीनिंग है कि प्रोडक्शन यूनिट्स मीन्स कि कौन कौन सी, विच आर द प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस, मतलब कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं विच एम्प्लॉय पीपल, जो फैक्टर्स को यूज करते हैं। तो नाउ यू नो वेरी वेल, लास्ट क्लासेस में भी यू हैव रेड, कौन से 3 सेक्टर्स होते हैं इन द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स, कौन कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वाई, क्योंकि यही सेक्टर्स में सारे लोग काम करते हैं। आप यू कैन थिंक फॉर ए वाइल कि कोई ऐसा कोई पर्सन है इस दुनिया में या इस कंट्री में जो इन तीनों सेक्टर्स के अलावा किसी और जगह काम करता हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। वट एवर वर्क वी आर डूइंग दैट विल गेट कैटेगराइज्ड अमंग दीज थ्री, या तो हम टर्शरी सेक्टर में हैं, या हम प्राइमरी सेक्टर में हैं, या हम सेकेंडरी सेक्टर में हैं। ठीक है, जैसे हम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो कैन एनीवन टेल कि हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन से सेक्टर का काम है,
टर्शरी सेक्टर, टर्शरी। वेरी राइट। आपके पेरेंट्स कोई फैक्ट्री है आपकी, वहाँ पर आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो कौन सा काम सेक्टर बनेगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर, वेरी गुड, वेरी राइट। अच्छा, कोई फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी काम है, फार्मिंग का मतलब सिर्फ होता कि वो खेतों में, प्राइमरी। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब ये 7th 8th से आप पढ़ते हो, ये क्लियर ही है सबको। तो ये तीनों सेक्टर्स में हम सारे लोग इन वन और द अदर फॉर्म वी ऑल आर इन्वॉल्व। तो पहला हो गया सेक्टर्स। सेकंड है एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। अब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, ये अपने आगे वट एवर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर, तो उनको विच टाइप ऑफ पेमेंट्स आर मेड, तो कौन कौन सी पेमेंट्स है जो भी हमने ऊपर ये सारी पढ़ी हैं, इन्हीं के नेम्स है। तो ऑल फैक्टर्स आर पेड अंडर दीज हेड्स, हेड्स मतलब अंडर दीज टाइटल्स। क्या क्या दिया जाता है लोगों को? या तो मिलती है कंपनसेशन, या हमें लैंड को मिलता है रेंट रॉयल्टी, या हमें कैपिटल की फॉर्म में अगर हो तो इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, एंड मिक्स्ड इनकम। अब आप ध्यान से देखो, ये सारा कुछ और कुछ भी नहीं है, दीज आर द नेम्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स। कि मतलब दिस टाइप ऑफ फैक्टर इनकम्स वी ऑल पीपल रिसीव, पीपल मतलब वी ऑल फैक्टर्स रिसीव, ये हमें इनकम्स मिल जाती हैं आफ्टर डूइंग अवर वर्क। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इफ यू रिमेंबर इन एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में आप देखो, वहाँ पे हमने क्या किया था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज द सम टोटल ऑफ 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स। वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटे एक यहाँ पे इन्होंने ना ये ऐसे ही बार बार दिया है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, आप इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट कर लो अंडरलाइन करके। इन प्लेस ऑफ राइटिंग दीज सेपरेटली वी शुड यूज द टर्म ऑपरेटिंग सरप्लस। वो एक सिंगल टर्म में हमें क्लियर हो जाता है, याद करना इजी रहता है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स आर टू बी एडेड टू गेट दिस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही ऊपर वाले यही है। देन उसके बाद फॉर गेटिंग दिस नेशनल इनकम की हाउ टू रीच एट नेशनल इनकम, देन वी फॉर दैट वी नीड टू एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि ये अभी जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज अवर डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, तो नाउ वी हैव टू मेक इट नेशनल कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए इसमें वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगली लाइन में फिर क्या कर दिया, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज नेशनल इनकम, इट इज इक्वल टू ये डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। And net factor income from abroad is the difference between factor income from abroad and factor income paid to abroad। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन में हमें ये डायरेक्टली ये वैल्यू दी होगी, और समटाइम्स इसके जो दोनों पार्ट्स हैं उनकी वैल्यू दी होगी, तो फिर वो ब्रैकेट में करके वी हैव टू फाइंड इट्स डिफरेंस। ठीक, नाउ अब है प्रिकॉशंस कि व्हेन वी यूज दिस इनकम मेथड, इसके अकॉर्डिंग हम वी ट्राई टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो सम पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड जिनको हमें ध्यान में रखना है, ओनली देन वी कैन अप्लाई दिस मेथड। नाउ विच आर दोज पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड प्रिकॉशंस। नाउ फर्स्ट इज ट्रांसफर इनकम। तो ये आपको याद होगा, एक पीछे फर्स्ट एक सर्कुलर फ्लो वाले में पता नहीं किसी में किया था हमने, कि जो ये इनकम मेथड के अकॉर्डिंग व्हेन वी कैलकुलेट, तो इसमें वी डोंट हैव टू ऐड दिस ट्रांसफर इनकम, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। वाई? कौन कौन सी होती है ट्रांसफर इनकम? स्कॉलरशिप्स है, डोनेशंस हैं, कुछ चैरिटेबल, कुछ चैरिटी के लिए वी हैव डोनेटेड मनी, या कोई गिफ्ट्स है, कुछ भी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ओल्ड एज पेंशन है जो गवर्नमेंट ओल्ड लोगों को हेल्प के लिए दे देती है। तो ऐसी जो इनकम्स होती हैं, दे आर ट्रांसफर इनकम्स। वाई? बिकॉज फॉर रिसीविंग दोज इनकम्स द पीपल हैव नॉट वर्कड फॉर दैट, they have not contributed anything, these are just one sided payments। तो वन साइडेड पेमेंट का मतलब है कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग, वी हैव नॉट वर्कड। तो अगर वर्क नहीं किया है तो दीज आर अनअर्नड, तो कोई भी अनअर्नड इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक, नेशनल इनकम में ओनली अर्नड इनकम्स आर इंक्लूडेड, काम करने के बाद जो मिलता है, मेहनत करने के बाद जो मिलता है, सिर्फ उस इनकम को इंक्लूड करना है। विदाउट वर्किंग जो में एक साइड से कुछ भी मिल गया, कुछ भी, एनीथिंग इन एनी फॉर्म बाय एनीवन, उसको हमने नहीं लेना है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो एक सिंगल लाइन में याद करना हो तो कहेंगे ट्रांसफर इनकम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, ओनली फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स होती हैं अर्नड इनकम्स, ओनली दे आर इंक्लूडेड। ठीक है, देन सेकेंड इज, लेट मी शो, यस आप बुक से भी आप देख सकते हो साइड बाय साइड। सेकेंड इज इनकम, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा जैसे इसको एक एग्जांपल लें, आपकी बाइक या एक्टिवा बच्चे जो चलाते हैं वो पुरानी हो गई और आप न्यू लेना चाहते हो। ठीक है, तो अब आप पुरानी एक्टिवा पहले सेल करना चाहते हैं,
तो आपने सेल कर दी, मान लो बड़ी ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गई थी तो आपको हार्डली उसके 4-5 हज़ार रुपये मिले, पैसे मिले ही नहीं क्योंकि ख़राब बहुत हो चुकी थी, ठीक। तो अब वो जो 4-5,000 रुपीज़ विच यू हैव गॉट आफ्टर द सेल ऑफ दैट एक्टिवा, दो दैट मनी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि वो एक्टिवा आप सेकेंड टाइम सेल कर रहे हो। फर्स्ट टाइम तो जब आपने शोरूम से बाय की थी वो फर्स्ट टाइम बनी थी, पहली बार वो नई चीज़ बनी थी, तो तब तो उसकी वैल्यू जितने की भी वो आई होगी 75,000 की, 80 की, जितना भी रेट है आजकल के अकॉर्डिंग, तो तब तो वो उस समय जो 80,000 थे या 75,000 थे वो इंक्लूड किए जाएंगे नेशनल इनकम में। बट नाउ सेकेंड टाइम व्हेन यू आर सेलिंग दैट, तो वो कहलाएगी सेकेंड हैंड कमोडिटी, पुरानी चीज़ है, तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक। एक और सिंपल एग्जांपल दो, एक्टिवा तो दूर की बात है, आपके हाथ में बुक्स हैं, है ना, कई बच्चों ने, मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव टेकन सेकेंड हैंड बुक्स, पिछले बच्चों की हम ले लेते हैं, नॉर्मली ले लेते हैं, नथिंग बैड इन दैट, ठीक कंडीशन में हो तो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने किसी बच्चे से आपने बुक ले ली, अब ओरिजिनल प्राइस था बुक का जब इट वाज न्यू तो मान लो 400 रुपीज़ था, अब आपने किसी बच्चे से ले ली 100 रुपीज़ में पुरानी बुक, तो अब 100 रुपीज़ विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वाई? बिकॉज बुक फर्स्ट टाइम नहीं बनी है, बुक तो पहले बन चुकी है, आप उसको दूसरी बार सेल कर रहे हो। अब आपने एक साल पढ़ लिया, आप आगे उस पढ़ने के बाद आपकी क्लास क्लियर हो गई, यू हैव सोल्ड टू समवन एल्स, आप किसी और को आगे सेल कर देते हो 50 रुपए में, तो 50 रुपए विल नॉट बी एडिड इन नेशनल, जितनी बार मर्जी सेल करो। सेकेंड हैंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेकेंड टाइम, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब तक चला सकते हैं चला लेते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट टाइम की जो सेल होती है उसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, बाकी कोई भी सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, नथिंग इज टू बी एडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है जी। अच्छा, बट थिंग टू बी रिमेंबर्ड, जिस पर्सन ने आपको सेकेंड हैंड चीज बेचने में मदद की है, आपने एक नाम सुना होगा, प्रॉपर्टी डीलर, सुना है वर्ड? कई बार बोर्ड लगा होता है ना, बाहर दुकान से खोल के लोगों ने लगाया होता है अपना ऑफिस, प्रॉपर्टी डीलर। तो वो लोग क्या करते हैं, घरों की सेल परचेज करवाते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग बनी है, किसी ने बेचना है, आपने घर बेचना है, किसी ने खरीदना है, बट यू बोथ पार्टीज यू डोंट नो ईच अदर। अब हमें क्या पता कि कहाँ पर कौन आदमी खरीदने का विलिंग है, हमें नहीं पता लगता, तो वी टेक द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी डीलर। तो उन लोगों के पास तो सब तरह की उनका काम ही है, दे कीप दैट इंफॉर्मेशन विद देम। तो वो आप दोनों लोगों की मीटिंग करवा देते हैं, बेचने वाले की भी और परचेज करने वाले की भी, ठीक। तो आपकी सेटलमेंट हो गई भी, हाँ जी भी हमने इतने पैसों में ये घर की सेल परचेज करनी है, वो तो आपका हो गया। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको भी तो आप कमीशन देंगे, ही विल गेट कमीशन फ्रॉम बोथ पार्टीज, दोनों से वो पैसे लेगा क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज डन द वर्क, ही हैज अरेंज्ड द मीटिंग्स बिटवीन दीज टू पार्टीज। तो उसका जो काम है, मिडल मैन का काम, ब्रोकर भी उसको बोल देते हैं या कमीशन एजेंट भी बोल देते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर तो एक जमीन के बारे का हो गया ना एग्जांपल, अदरवाइज कमीशन एजेंट या ब्रोकर या मिडलमैन, उसको जो मनी दिया है दैट इज हिज फैक्टर इनकम, वो उसकी लेबर का पैसा है, उसने मेहनत किया है, ठीक है। तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई होप एम आई क्लियर, ठीक है। जो सेकेंड हैंड चीज़ों की खरीद बेच है उसको नहीं लेना है, बट जो पर्सन उस सेल परचेज को फैसिलिटेट करवा रहा है, हमें हेल्प कर रहा है कमीशन एजेंट के तौर पे या मिडल इंटरमीडियरी के तौर पे, उसका जो भी लेबर बनती है, कमीशन बनता है, दैट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा जो लोग शेयर्स की सेल परचेज का काम करते हैं, जैसे हम आम लोगों को नहीं पता होता कैसे परचेज करना है या कैसे सेल करना है, तो देन वी टेक हेल्प ऑफ एनी पर्सन, तो वो पर्सन हमारी हेल्प करता है बेचने में, खरीदने में, उसका जो भी कमीशन बनता होगा वो हमें देना पड़ता है। तो दैट टाइप ऑफ इनकम इज इंक्लूडेड बिकॉज दैट पर्सन इज डूइंग वर्क फॉर फर्स्ट टाइम, उसको इंक्लूड करना है, राइट। देन नेक्स्ट है इनकम, ये अच्छा मैंने अगला पहले ही बोल दिया, यही वाला जो भी मैं बोल रही थी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इसका मतलब है कि जो ये शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, दीज आर जस्ट पेपर क्लेम्स, पेपर के ऊपर ही लिखा होता है ना कि मैंने इतने रुपए के बराबर शेयर्स खरीदे, मैंने इतने रुपए का ये बॉन्ड लिया, इतने 1000 लाख रुपीस के डिबेंचर्स खरीदे, ये सारा कुछ। तो जो होता है ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल, ये हमारी कैपिटल है, तो ये दीज आर जस्ट पेपर क्लेम्स, इसके ऊपर सिर्फ नाम ही लिखा होता है कि मिताली ने इतने 1000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, कनिका ने इतने के खरीद लिए। तो अब इन रियलिटी सिर्फ वो पेपर जो है दैट इज नॉट एडिंग एनीथिंग फिजिकली इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, वो सिर्फ पेपर्स के ऊपर ही काम चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई कितनी नहीं हुई उसमें उस पेपर का कोई रोल नहीं बनता है, वो सिर्फ पेपर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है।
बट वो जो तो उस करके उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक। बट उस शेयर परचेज जो ये शेयर्स बॉन्ड्स की इसका जो कमीशन एजेंट होता है, जो ब्रोकर होता है, जो हमें इसकी खरीदने में या बेचने में हेल्प करता है, उसका जो प्रॉफिट, उसका जो कमीशन है, कमीशन या ब्रोकरेज, दैट विल बी इंक्लूडेड, ठीक। तो दीज आर क्वाइट सिंपल, इतनी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको साथ ज़्यादा समझा रही हूँ, अदरवाइज एक एक लाइन ही आपने याद करनी है। उसके बाद है कैपिटल गेन्स, अवॉइड कैपिटल गेन्स, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल गेन्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये इसमें ये देखो जरा क्या लिखा हुआ, जो कैपिटल एसेट्स को बेच के जो भी प्रॉफिट होता है, कैपिटल एसेट्स को बेच करके जो भी प्रॉफिट होता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, उसको बोल दिया जाता है कैपिटल गेन्स। तो एसेट कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ओल्ड कार है, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। अब ये क्या है, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स की रेपिटेशन ही है। ओल्ड कार हो गई सेकेंड हैंड चीज, शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर्स हो गए पेपर क्लेम्स, ठीक है। तो इस तरह के जो कैपिटल एसेट्स हैं, उसके उससे जो भी इनकम है वो इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक। तो कैपिटल गेन्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। इससे कुछ प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन चीजों को लेना है जिससे प्रोडक्शन में रियलिटी में फर्क पड़े, राइट। चलो नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होते हैं ऑल ऑफ ए सडन वी गेट एनी बेनिफिट विदाउट वर्किंग हार्ड। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, लॉटरीज लोग ले लेते हैं, राखी बम्पर, लोहड़ी बम्पर, और आ जाता है 5 करोड़ का बैसाखी बम्पर, है ना, दिवाली बम्पर, ऐसे लॉटरीज के नाम होते हैं। तो या कोई लोग हॉर्स रेसेस में, ये सब कोई अच्छी बातें नहीं है, इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ना है, ठीक है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है कि लॉटरी खरीद लो या घोड़ों पे पैसे लगा दो, ऐसा कुछ नहीं जीवन में करना अपने, ठीक। तो ऐसी कामों से अगर प्रॉफिट होता है, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने कुछ काम नहीं किया था, इस करके नहीं इंक्लूड करना, राइट। फिर उसके बाद है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। तो ये इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे जो किया था ना रेंट इंटरेस्ट वाला पार्ट। तो जो अपने रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, अपने पर्सनल लैंड को, अपने पर्सनल कैपिटल को, जो भी है उसकी, अगर इफ वी आर यूजिंग दोज पर्सनल रिसोर्सेज इन अवर वर्क, तो उससे जो भी हमें इनकम जनरेट होगी, इधर इन द फॉर्म ऑफ रेंट या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या रॉयल्टी, जो भी है, दैट इज टू बी इंक्लूडेड। कैसे उसको इंक्लूड करना है, वी हैव टू असेस दैट वैल्यू एट द मार्केट रेट, ठीक है। आपने अपना पैसा काम में लगा दिया, तो आपने अपने आप को ही इंटरेस्ट दे दिया, अपनी ही लैंड के ऊपर काम स्टार्ट किया, आपने अपने आप को ही रेंट दे दिया। अगर ये लैंड या मनी आपके पास ना होता, तो देन यू वुड हैव टू बाय इट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से रेंट पे लेनी पड़नी थी ज़मीन या ऑफिस या बिल्डिंग, और कैपिटल दूसरों से लोन के तौर पे लेना पड़ना था, तो अदर पीपल वुड हैव टू बी पेड बाय यू। नाउ यू आर नॉट पेइंग टू देम, यू आर पेइंग टू योर ओन सेल्फ। तो इसका मतलब वो जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, अपने ही रिसोर्सेज, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू भी हमें ही मिलनी चाहिए, तो दैट इज टू बी इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। पास्ट सेविंग्स का मतलब होता है कि हमने अपना एक, आप थोड़ा सा आप ध्यान अगर करो, तो जब हम रूटीन में करंट टाइम में वी कीप ऑन सेविंग, आज हम सेव कर लिया, अगले महीने सेव कर लिया, ऐसे अपनी इनकम में से सेविंग करते जाते हैं। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो हमारे जो पिछले सालों की सेविंग है, अब वो तो पिछले साल की होगी ना, इकट्ठी होती जाती है, दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड, ऑब्वियसली वी फील हैप्पी कि हमने इतना सेव कर लिया। बट हम सेव करते कहाँ से हैं? अपनी करंट इनकम में से सेव करते हैं, जो हमें इस समय काम करके मिलती है, उसमें से सेविंग कर रहे हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड, वो इकट्ठा होता जाता है। फिर जब वो ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, देन वी बाय एनीथिंग, जो भी हमें ज़रूरत होती है, हम कोई घर ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, या काम में लगा लेते हैं, जो भी है वट। तो वो जो एक्यूमुलेटेड हमारी वेल्थ है या प्रॉपर्टी है या सेविंग है, उसमें से जो भी हम पेमेंट्स करते हैं, आमतौर पे वो पेमेंट्स नॉर्मली हम जो टैक्स देना पड़ता है खास करके, तो उस पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। पुरानी सेविंग्स में से जो भी पेमेंट हमने की है वो इंक्लूड नहीं करते। जैसे कई बार हमें अपनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो गवर्नमेंट को वेल्थ का टैक्स भी देना पड़ता है, कई तरह के टैक्स होते हैं, आप अगली क्लासेस में यू विल कम टू नो अबाउट देम इन डिटेल। तो वो टैक्स देना पड़ता है, या डेथ ड्यूटीज़ है, या कुछ और भी कई तरह के टैक्सेस होते हैं। तो वो जो पुरानी सेविंग में से करते हैं उसको हमने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि उसके लिए हमने प्रेजेंट में काम नहीं किया। वो जो पुरानी सेविंग थी उसके लिए पुराने समय में से ही निकाल निकाल के वो रखी हुई है।
तो वो इंक्लूड नहीं करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो इंक्लूड नहीं होते, वो तो यहाँ नाम से ही क्लियर है। जब हम ये टर्म लिखते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब वो टर्म फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, मार्केट प्राइस पे नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होते, और जो उसका मार्केट प्राइस है वो हम इंक्लूड नहीं करते, हम ओनली फैक्टर कॉस्ट के ऊपर वी स्टडी ऑल दीज टर्म्स, ठीक। तो दीज आर द वेरियस प्रिकॉशंस। आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 मार्क्स में, कि राइट, या 6 मार्क्स में भी, जितने मार्क्स क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, कि राइट द प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इनकम मेथड, या विच प्रिकॉशंस नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग इनकम मेथड, ऐसे कुछ भी बना के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एज पर मार्क्स उतने पॉइंट्स आपने देने हैं, ठीक है। डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने बस इतना मेन याद रखना है किसको इंक्लूड करते हैं किसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक। With this, our theoretical part of this method comes to an end. Now you please take out your notebook. Now let us write the formula. Yes, please write down. न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आगे हम क्वेश्चंस करेंगे।